اے وہ دل رکھنے والوں جن کے سینوں میں سوال زندہ ہے، اے وہ آنکھوں جنہوں نے دنیا کی چمک دیکھ لی مگر دل کا نور ابھی تک ڈھونڈ رہی ہے۔ آج کی یہ گفتگو تم سے ہے، تمہارے دل سے ہے اور تمہارے اسی اندرونی سوال سے ہے جو اکثر خاموشی میں جاگ اٹھتا ہے کہ آخر فقر ہے کیا، فقیر کون ہوتا ہے اور وہ راستہ کون سا ہے جو بظاہر محرومی کا مگر حقیقت میں دولت لازوال کا راستہ ہے۔ باتیں کتابی نہیں، یہ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں، یہ وہ اسرار ہیں جو صدیوں سے اہل دل کے سینوں میں منتقل ہوتے آئے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو زبان سے کم اور حال سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ فقر کوئی لباس نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو اس کے اپنے آپ سے خالی کر کے رب سے بھر دیتی ہے۔ کہ اکثر لوگ فقر کو فاقہ سمجھ لیتے ہیں، غربت سمجھ لیتے ہیں، ہاتھ پھیلانا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ فقر تو وہ سلطنت ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام بادشاہتیں ہیچ ہو جاتی ہے۔ فقیر وہ نہیں جو کچھ نہیں رکھتا، فقیر وہ ہے جسے کچھ رکھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کا دل خواہش سے آزاد، اس کی نظر طلب سے پاک اور اس کی روح رضا میں ڈوبی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقر کا راستہ ہر آنکھ کو بھلا نہیں لگتا۔ یہ راستہ اکثر لوگوں کو الٹا دکھائی دیتا ہے۔ جو یہاں گمراہی سمجھا جاتا ہے وہی اصل میں ہدایت ہوتی ہے، اور جو یہاں کامیابی دکھائی دیتی ہے وہی اندر سے خسارہ بن چکی ہوتی ہے۔ یہی راز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں کھولا گیا، جہاں ظاہر نے اعتراض کیا اور باطن نے حکمت کو تھام لیا۔ یہ گفتگو اسی باطن کی ہے، اسی فقر کی ہے، اسی راہ نادیدہ کی ہے جہاں انسان بظاہر ٹوٹتا ہے مگر حقیقت میں جڑتا ہے، جہاں نفس فنا ہوتا ہے، روح قوی ہوتی ہے اور دل رحمت سے بھر جاتا ہے، جہاں فقیر دنیا کے بازار میں چلتا ہے مگر اس کا دل مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتا ہے۔ فقر کوئی لفظ نہیں، نہ کوئی لباس ہے، نہ کوئی وضع قطع، نہ فقیری کسی ترک دنیا کا ظاہری اعلان ہے۔ فقر دراصل ایک ایسی حالت کا نام ہے جو انسان کے اندر آہستہ آہستہ جنم لیتی ہے، پھر اسے توڑتی ہے، بکھیرتی ہے، جھلاتی ہے اور آخرکار اسے خود اس کے اپنے وجود سے آزاد کر دیتی ہے۔ فقر وہ دروازہ ہے جو باہر سے تنگ اور اندر سے بے کنار ہے، جس پر قدم رکھنے والا پہلے اپنا نام، اپنا مقام، اپنی چاہتے اور اپنی طاقت، اپنی پہچان وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس راستے میں کوئی نعرہ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، یہاں صرف ایک خاموش جلنا ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر سب کچھ جلا دیتا ہے۔ فقر کے 3 حروف ہے مگر یہ 3 حروف محض حروف نہیں بلکہ 3 منازل ہے، 3 زخم ہے، 3 زندہ حقیقتیں ہیں جن سے گزرے بغیر فقر کا مفہوم کبھی نہیں کھلتا۔ حرف ف سے فنائے نفس مراد لی جاتی ہے، لیکن فنائے نفس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو مٹا دے یا دنیا سے بھاگ جائے، بلکہ فنائے نفس یہ ہے کہ انسان اپنے اندر بیٹھے ہوئے اس جھوٹے مرکز کو توڑ دے جو ہر وقت خود کو اصل سمجھتا ہے۔ نفس وہ سب سے بڑا پردہ ہے جو بندے اور حق کے درمیان حائل ہے۔ جب تک یہ پردہ سلامت ہے، عبادت بھی نفس کی خوراک بنتی ہے، علم بھی غرور بن جاتا ہے اور زہد بھی ایک نیا فخر۔ فنائے نفس دراصل اس مرکزیت کا ٹوٹنا ہے جہاں سے میں، میرا، مجھے اور میرے جیسے لفظ جنم لیتے ہیں۔ جب یہ فنا شروع ہوتی ہے تو آدمی کو سب سے پہلے اپنی نیکی مشکوک لگنے لگتی ہے، اپنے اعمال بوجھ بننے لگتے ہیں اور اپنی عبادت پر اعتماد ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ گھبرا کر واپس لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ نفس کو سب کچھ برداشت ہے سوائے اس کے کہ اس کی نفی ہو۔ جو یہاں سے پلٹ آتا ہے وہ فقر کے دروازے تک آ کر دنیا کے کسی نئے راستے میں گم ہو جاتا ہے، مگر جو ٹھہر جاتا ہے، جو جلنا قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے حرف ایف فنا نہیں بلکہ آزادی بن جاتا ہے۔ فقر کا دوسرا حرف قو ہے جس سے قوت روح مراد ہے۔ یہ قوت کسی جسمانی طاقت کا نام نہیں، نہ یہ کسی کرامت یا خارق عادت عمل کا نام ہے۔ قوت روح وہ استقامت ہے جو فنا کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ جب نفس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو روح اپنی اصل طاقت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو بندے کو حالات کے مقابل کھڑا نہیں کرتی بلکہ حالات سے آزاد کر دیتی ہے۔
ऐसा शख्स दुनिया में रहता है मगर दुनिया इसमें नहीं रहती। दुख उसे तोड़ नहीं पाता, राहत उसे बहका नहीं सकती, तारीफ उसे ऊंचा नहीं करती और तनकीद उसे गिरा नहीं सकती। ये कुव्वत रूह ही है जो फकीर को आम इंसान से जुदा करती है। फकीर कमजोर नजर आता है, मुफलिस दिखाई देता है, बसा औकात सवाल करता हुआ भी दिखाई देता है, मगर इसके बातिन में एक ऐसी मजबूती होती है जो शाही खजाने भी नहीं दे सकते। यही वो मकाम है जहां दुनियावी आंखें धोखा खा जाती है, क्योंकि वो ताकत को सोने, चांदी और इख्तियार के पैमानों से नापती है, जबकि फकीर की ताकत उसकी बेनियाजी में होती है। ई फक्र का तीसरा हर्फ रा है, जिससे रहमे दिल मुराद है। ये रहम महज नरमी या जज्बाती हमदर्दी नहीं, बल्कि ये वो वुसअत है जो फना और कुव्वत के बाद दिल में पैदा होती है। जब इंसान अपने नफ्स से आजाद होता है तो उसे दूसरों के नफ्स भी मजबूर नजर आने लगते हैं। फिर वो किसी को गुनाहगार कहकर रद्द नहीं करता, किसी को हकीर समझकर धुतकार नहीं देता, बल्कि उसकी नजर में हर शख्स एक आजमाइश से गुजर रहा होता है। यही रहमे दिल फकीर को सख्त फैसलों के बावजूद नरमे बातिन अता करता है। यही तीन हुरूफ अगर दूसरे जाविये से देखे जाए तो फक्र फख्र बन जाता है, को कुर्ब में बदल जाता है और राह रहमत की सूरत इख्तियार कर लेता है। मगर यहां फख्र का मतलब वो फख्र नहीं जो नफ्स को बुलंद करे, बल्कि वो फख्र है जो बंदे को बंदगी पर मुतमईन कर दे। कुर्ब वो नहीं जो दावों में बयान किया जाए, बल्कि वो कुर्ब है जो खामोशी में महसूस हो। रहमत वो नहीं जो जबान से मांगी जाए, बल्कि वो जो वजूद से टपके। लेकिन फक्र का एक दूसरा रुख भी है जो बहुत कम बयान किया जाता है। जो शख्स फक्र की गनीमत में आकर रजअत खुर्दा हो जाए, जो इस रास्ते की तलखी से घबरा कर दुनिया की तरफ लौट आए, इसके लिए यही तीन हुरूफ उलट जाते हैं। फा से फजीहत नसीब होती है, ता से कहरे खुदा और रा से रद्द। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने फक्र का जायका चखा मगर उसे हजम ना कर सके। उन्होंने कुछ देख लिया, कुछ पा लिया, मगर साबित कदम ना रह सके। ऐसे लोग अक्सर दावों, निस्बतों और रूहानी अलकाबात के पीछे छुप जाते हैं, मगर बातिन में उनके दिल सख्त और निगाह तलब की असीर होती है। वाज़े रहे कि जो शख्स फख्र में साबित कदम रहता है, उसकी नजर में दुनियावी खजाने वाकई शाही खजानों से कहीं बढ़कर होते हैं, मगर इसलिए नहीं कि वो उनका तलबगार हो, बल्कि इसलिए कि वो जान चुका होता है कि असल खजाना कहाँ है। उसे बातिन में मारिफत इलाही नसीब होती है, चाहे जाहिर में वो अहले दुनिया के सामने दस्ते सवाल दराज करता नजर आए। यहां बहुत बड़ा मुगालता जन्म लेता है, क्योंकि लोग जाहिर को देखकर हुक्म लगाते हैं और फकर जाहिर का मोहताज नहीं होता। फकीर का मर्तबा यह है कि वो जाहिर में मुफलिस होता है मगर बातिन में गनी होता है। उसकी गिना दौलत से नहीं, यकीन से होती है। उसका सुकून असबाब से नहीं, निस्बत से होता है, और यही निस्बत उसे मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी हुजूरी अता करती है। ये हुजूरी कोई ख्वाब या कश्फ नहीं, बल्कि एक ऐसी शऊरी कैफियत है जिसमें उसका हर अमल, हर नियत, हर खामोशी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में ढल जाती है। सुल्तान बाहू का ये कौल कि वो फकीर को एक ही नजर में पहचान लेते हैं, ऐसे है जैसे सनार सोना और चांदी परख लेता है, दरअसल उसी बातनी मीजान की तरफ इशारा है। सनार को सोने की पहचान के लिए शोर नहीं चाहिए, फकीर को पहचानने के लिए लिबास या कलाम काफी नहीं होता। एक निगाह, एक खामोशी, एक रद्द अमल काफी होता है। यही वजह है कि हकीकी फकीर अक्सर लोगों की नजरों में बेवकत और मशकूक रहता है। वाकई और यकीनी अम्र यह है कि फकीर राह रास्त पर होता है, खाह लोगों की निगाहों में उसकी राह गुनाह ही मालूम होती हो। यही हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजर अलैहिस्सलाम के किस्से में खुलकर सामने आती है। कश्ती को तोड़ देना, बच्चे को कत्ल कर देना और टूटी हुई दीवार की मुरम्मत करना, ये सब आमाल शरीयत की जाहिरी निगाह में काबिल सवाल थे, मगर बातिन में ये सब ऐन रहमत थे। यही फर्क है जाहिर और बातिन के इल्म का। अक्सर आदमी ऐसे भी होते हैं जो लोगों की नजरों में अहले अल्लाह होते हैं,
मगर बातिन में ख्वाहिशात नफसानी के पाबंद होते हैं। उनका जुहद भी नफ्स का खेल होता है और उनकी इबादत भी तलब की सूरत। इसीलिए हदीस में आया है कि अहमक वो शख्स है जो ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी के बावजूद अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की उम्मीद रखे। ये हदीस फ़क्र के रास्ते की बुनियाद है, क्योंकि फ़क्र उम्मीद और खौफ के दरमियान नहीं बल्कि सच्चाई के सामने खड़े होने का नाम है। फिर फ़क्र इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, खुद को परखने पर मजबूर करता है और यही सोच असल इबादत बन जाती है। अल्लाह पाक हमें देखने, समझने और साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। फ़क्र का सफर यहां रुकता नहीं बल्कि यहां से असल आजमाइश शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान नफ्स की पहली दीवार गिरा देता है तो उसे यह गुमान होने लगता है कि शायद मंजिल पा ली गई है। हालांकि फ़क्र में हर मकाम एक नई जिम्मेदारी बनकर सामने आता है। यही वो नाजुक मोड़ है जहां अक्सर लोग ठहरने के बजाय रुक जाते हैं, और रुक जाना फ़क्र में ज़वाल की पहली अलामत होता है। फ़क्र चलने का नाम है, जलते हुए आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर देखने का नहीं। ये बात समझ लेना जरूरी है कि फ़क्र में सवाल करना और दुनिया की चीज मांगना बजाते खुद ऐब नहीं, ऐब नीयत में है। फकीर अगर सवाल करता भी है तो उसका सवाल तलब नहीं होता बल्कि तकदीर का एक रंग होता है। वो मांगता इसलिए नहीं कि उसके दिल में हिर्स हो, बल्कि इसलिए कि हक ने उसे उस हाल में रखा होता है। यही वो नुक्ता है जो अहले जाहिर की समझ में नहीं आता। इसीलिए वो फकीर को भी उसी तराजू में तोलते हैं जिसमें ताजिर को तोला जाता है। फकीर का सवाल उसके बातिन की गना को कम नहीं करता, क्योंकि उसकी नजर सवाल पर नहीं बल्कि देने वाले पर होती है। वो जानता है कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन, इसलिए इसका हाथ फैलना भी बंदगी बन जाता है और इसका खामोश रहना भी शुक्र की सूरत इख्तियार कर लेता है। यही वो कैफियत है जिसे आम अकल निफाक समझ लेती है, हालांकि ये इखलास की इंतहा होती है। यही वजह है कि फ़क्र में जाहिर और बातिन के तजाद को समझना जरूरी है। फकीर बसा औकात ऐसे काम करता है जो देखने वाले को नागवार लगते हैं, मगर इसके पीछे वो नियत और वो हकम होता है जो आम आंख से ओझल रहता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का हर अमल इसी हकीकत की मिसाल है। उन्होंने कश्ती तोड़ी तो लोगों को लगा जुल्म हो रहा है, मगर दरअसल वो गरीबों की रोजी बचा रहे थे। उन्होंने बच्चे को कत्ल किया तो लोगों को लगा कसावत हो रही है, मगर हकीकत में वो वालदैन को एक बड़े फितना से बचा रहे थे। उन्होंने दीवार बनाई तो लोगों को लगा एहसान हो रहा है, मगर असल में वो एक अमानत की हिफाजत थी। यही मामला फकीर के साथ भी होता है। वो जिस रास्ते पर चल रहा होता है वो शरीयत से बाहर नहीं होता, मगर शरीयत के जाहिर से आगे होता है। यहाँ एक बारीक फर्क है जिसे ना मानने से गुमराही पैदा होती है और जिसे बिला शर्त मान लेने से भी फितना जन्म लेता है। इसीलिए फक्र का रास्ता हर शख्स के लिए नहीं, ये उसी के लिए है जिसे हक खुद चुन ले। अक्सर ऐसा होता है कि लोग फक्र के नाम पर अपनी ख्वाहिशात को जायज ठहराने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम बातिन वाले हैं, हमें जाहिर की कैद नहीं। यही वो मकाम है जहां फक्र बिगड़कर फजीहत बन जाता है। फक्र कभी शरीयत से आजाद नहीं होता, बल्कि शरीयत के अंदर रहकर बातिन की वसत अता करता है। जो शख्स शरीयत को तोड़कर फक्र का दावा करे वो दरअसल अपने नफ्स को एक नया नाम दे रहा होता है। यहाँ वो हदीस पूरी शिद्दत के साथ सामने आती है जिसमें फरमाया गया कि अहमक वो है जो ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी के बावजूद अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की उम्मीद रखे। ये हदीस फक्र के हर तालिब के लिए आईना है। फक्र उम्मीद का नाम नहीं, फक्र सच्चाई का नाम है। उम्मीद और खौफ दोनों नफ्स के खेल बन सकते हैं, मगर सच्चाई नफ्स को बर्दाश्त नहीं होती। फकीर का रास्ता इसलिए भी मुश्किल है कि इसमें तन्हाई लाजिम है। ये तन्हाई जिस्मानी नहीं बल्कि फिक्री और बातनी होती है। फकीर मजमा में भी अकेला होता है और खामोशी में भी बसा औकात शोर सुनता है। इसकी तन्हाई उसे तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। वो इसी तन्हाई में अपनी हकीकत से रूबरू होता है और यही रूबरू होना असल मारिफत का दरवाजा है।
मारिफत कोई इल्म नहीं जो किताबों से मिल जाए, न कोई मकाम है जो मुशक्कत से हासिल हो, बल्कि ये एक हालत है जो फना के बाद अता होती है। जब इंसान अपने इल्म पर भरोसा छोड़ देता है तो उसे वो इल्म दिया जाता है जो अल्फाज का मोहताज नहीं होता। यही इल्म फकीर को खामोश बना देता है, क्योंकि जो देख लेता है वो कम बोलता है। इसीलिए अहले फक्र की गुफ्तगू में कम लफ्ज और ज्यादा वजन होता है। उनके जुमले लंबे नहीं होते मगर दिल में उतर जाते हैं। वो वाज नहीं करते, वो बस अपना हाल जीते हैं, और यही हाल दूसरों के लिए दलील बन जाता है। ये भी एक हकीकत है कि हर वो शख्स जो लोगों की नजर में गुनाहगार दिखाई देता है वो हक से दूर नहीं होता, और हर वो शख्स जो लोगों की नजर में नेक दिखाई देता है वो हक के करीब नहीं होता। जाहिर का धोखा सबसे बड़ा फितना है। इसीलिए फकीर की नजर हमेशा बातिन पर होती है, चाहे वो अपने बातिन की ही क्यों ना हो। फक्र में एक और नाजुक पहलू ये है कि यहां निस्बतें भी इम्तिहान बन जाती हैं। किसी बड़े नाम से जुड़ जाना, किसी सिलसिले में शामिल हो जाना, किसी मजार से निस्बत रखना, ये सब फिक्र की जमानत नहीं। निस्बत उस वक्त बोझ बन जाती है जब वो अमल से खाली हो। फकीर निस्बत को सहारा नहीं बनाता बल्कि जिम्मेदारी समझता है। वो जानता है कि जिसका नाम लिया जा रहा है उसके सामने जवाबदेही भी है। इसीलिए सुल्तान बाहू जैसे अहले नजर फकीर को पहचान लेते हैं, क्योंकि वो निस्बत नहीं देखते, हालत देखते हैं। वो लफ्ज नहीं सुनते, खामोशी पढ़ते हैं। वो दावा नहीं देखते, रद्दे अमल तोलते हैं। यही वो तराजू है जिस पर सोना खोटा नहीं हो सकता। यहां से फिक्र का सफर एक और गहरे दायरे में दाखिल होता है, जहां फकीर खुद अपने वजूद पर भी शक करने लगता है। उसे ये भी यकीन नहीं रहता कि वो फकीर है। यही शक दरअसल यकीन की इब्तिदा होता है, क्योंकि जो खुद को कुछ समझने लगे वो फिक्र से दूर हो जाता है। फिक्र का कमाल ये है कि वो इंसान को कुछ नहीं बनाता बल्कि सब कुछ छीन लेता है। जब छीनने को कुछ नहीं रहता तो जो बचता है वही हकीकत होती है। यही वो मकाम है जहां फकीर दुनिया के लिए एक मुअम्मा बन जाता है और खुद अपने लिए एक राज। अब ये रास्ता और भी बारीक होने वाला है, जहां फिक्र और फाका, जुहद और हिर्स, अखलास और रिया के दरमियान फर्क मजीद वाज़े होगा, और जहां ये बात खुलेगी कि क्यों बाज औकात फकीर का अमल लोगों को गुनाह लगता है और गुनाह करने वाला लोगों को वली नजर आता है। फक्र के इस मरहले पर आकर एक और पर्दा उठता है। वो पर्दा नियत का है। यहां पर इंसान ये समझने लगता है कि असल फैसला अमल से नहीं बल्कि नियत से होता है। मगर फक्र में नियत भी वैसी नहीं रहती जैसी आम फहम में समझी जाती है। यहां नियत कोई सोचा समझा इरादा नहीं होती बल्कि एक दाखिली रुख होता है, एक झुकाव जो खुद ब खुद हक की तरफ मुड़ जाता है। नफ्स बाकी हो तो नियत को भी संवारना पड़ता है, मगर जब नफ्स फना की राह पर हो तो नियत खुद ब खुद दुरुस्त होने लगती है। यही वजह है कि फकीर का एक सा अमल कभी लोगों को नेकी लगता है और कभी गुनाह। असल फर्क देखने वाली आंख का है, क्योंकि जो आंख नफ्स के पर्दे में है वो हर चीज को अपनी तराजू में तोलती है। फकीर इस तराजू को तोड़ देता है, इसीलिए इसका अमल किसी एक खाने में फिट नहीं होता। यही बात लोगों को खटकती है, क्योंकि इंसान को वही चीज पसंद आती है जो उसकी समझ में आ जाए। यहाँ फक्र और ज़हद का फर्क भी वाज़ेह होता है। ज़हद अक्सर तर्क का नाम है, और तर्क में भी एक लज्जत छुपी होती है। जो चीज छोड़ दी जाए इसका एहसास भी एक किस्म की मलकियत बन जाता है। फक्र तर्क से आगे की चीज है। फक्र में न छोड़ने का गुरूर होता है और न रखने की ख्वाहिश। फकीर के पास अगर कुछ आ जाए तो वो उसका हो नहीं जाता, और अगर कुछ चला जाए तो वो खाली नहीं होता। यही तवाजुन फक्र की पहचान है। अक्सर लोग फक्र को फाका समझ लेते हैं, हालांकि फाका महज जिस्मानी भूख है और फक्र रूहानी आजादी। फाका इंसान को तोड़ सकता है, मगर फक्र इंसान को जोड़ता है। फाका में शकवा जन्म लेता है, फक्र में शक्र। यही वजह है कि बहुत से मुफलिस लोग फकीर नहीं होते और बहुत से फकीर जाहिरी तौर पर मुफलिस नहीं होते, मगर उनके दिल में दुनिया की कोई कीमत नहीं होती। यहाँ एक और बारीक नुक्ता सामने आता है कि फकीर के दिल में दुनिया की बेवकती नफरत की सूरत नहीं होती। वो दुनिया से बेजार नहीं होता, बल्कि दुनिया को उसके असल मकाम पर देखता है।
वो दुनिया को दुश्मन नहीं समझता बल्कि आजमाइश समझता है। इसीलिए वो दुनिया के साथ लड़ता नहीं, उससे आजाद रहता है। यही आजादी फकीर को रहमे दिल अता करती है। वो किसी के गुनाह पर चूकता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि नफ्स किस तरह इंसान को घसीटता है। वो किसी की नेकी पर भी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वो जानता है कि नफ्स नेकी को भी अपनी ही मदफू गजा बना लेता है। उसकी नजर अमल से ज्यादा हाल पर होती है और हाल से ज्यादा अंजाम पर। यहां एक अजीब कैफियत पैदा होती है कि फकीर खुद को लोगों से बेहतर भी नहीं समझता और कमतर भी नहीं। वो तकाबुल से बाहर आ जाता है। यही बाहर आ जाना असल आजादी है। जब इंसान खुद को किसी पैमाने में नहीं रखता तो कोई उसे नाप भी नहीं सकता। इसी मकाम पर फकर का ताल्लुक मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ज्यादा वाज़े हो जाता है। ये हुजूरी किसी जाहिरी शक्ल में नहीं बल्कि एक बातनी निस्बत में होती है। फकीर का दिल अदब में ढला होता है, उसकी गुफ्तगू में एहतियात होती है, उसके फैसलों में नरमी होती है और उसकी खामोशी में वजन होता है। यही वो निशानियां हैं जो उसे इस मजलिस से जोड़ती हैं, जहां शोर नहीं मगर नूर ही नूर है। ये भी याद रखने की बात है कि फकीर का अदब जाहिर से ज्यादा बातिन में होता है। वो जुबान से दरूद पढ़ता है तो दिल झुक जाता है, और जब दिल झुकता है तो अमल खुद ब खुद संवर जाता है। यही वजह है कि फकीर का अमल बज़ाहिर सादा होता है मगर उसमें तासीर होती है। यहां आकर एक और फितना सामने आता है, और वो फितना ये है कि इंसान अपने फक्र को पहचानने लगता है। जैसे ही ये ख्याल आता है कि मैं फकीर हूं, फक्र खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि फक्र पहचान का नाम नहीं, बेखबरी का नाम है। जो खुद को फकीर समझे वो अभी रास्ते में है, जो खुद को कुछ ना समझे वही करीब है। इसीलिए अहले फक्र अक्सर अपनी हालत को छुपाते हैं, और अगर छुपा ना सकें तो उलझा देते हैं। वो सीधी बात नहीं करते, क्योंकि सीधी बात नफ्स के हाथ में खेल बन जाती है। उनकी बात में रम्ज होता है, इशारा होता है, ताकि हर सुनने वाला अपनी विसत के मुताबिक समझे। यहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की एक और जहत सामने आती है कि उनके अमाल सिर्फ उस वक्त समझ में आए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया और जवाब मिला। इससे पहले वो अमाल महज उलझन थे। यही हाल फकीर के साथ होता है। उसका अमल उस वक्त तक एतराज बनता है जब तक उसके पीछे की हकीकत न खुले, और ये हकीकत हर एक पर नहीं खुलती। इसीलिए फक्र में खामोशी को बहुत अहमियत दी गई है। खामोशी यहाँ महज बोलने का ना होना नहीं, बल्कि अपनी बात को अपने अंदर समेट लेना है। जो कुछ देखा, जो कुछ पाया, उसे नुमाइश ना बनाना। यही खामोशी फकीर की हिफाजत भी करती है और पहचान भी। ये सफर अब इस मुकाम पर आ रहा है जहां फक्र और रजत के दरमियान फर्क बिल्कुल वाज़े हो जाएगा, जहां ये समझ में आएगा कि कौन सा पलटना हलाकत है और कौन सा ठहरना नजात, और क्यों बाज लोग फक्र से लौटकर पहले से ज्यादा सख्त और महरूम हो जाते हैं। फक्र के इस नाजुक मोड़ पर आकर इंसान एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि यहां पलटने और ठहरने के दरमियान फर्क बहुत बारीक होता है। रजत हमेशा उस वक्त आती है जब इंसान को लगने लगता है कि अब उसके लिए कोई खास मकाम बन गया है, या ये कि उसने कुछ पा लिया है जिसे महफूज रखना जरूरी है। फक्र में जो कुछ मिलता है वो अमानत होता है, और जो अमानत को मिल्कियत समझ ले वही रजत का शिकार हो जाता है। यही वो लम्हा है जहां फक्र फख्र में बदलने लगता है और खामोशी दावा बन जाती है। रजत खोरदा शख्स अक्सर फक्र के अल्फाज तो बोलता है, मगर उसके अंदर की कैफियत बदल चुकी होती है। उसकी गुफ्तगू में शिकायत आ जाती है, उसकी निगाह में तलब दर आती है, और उसके फैसलों में सख्ती पैदा हो जाती है। वो पहले जो दुनिया को बेवक्त समझता था, अब उसी दुनिया से ये तकाजा करने लगता है कि वो उसके फक्र को माने, उसकी इज्जत करे, उसकी बात को अहम समझे। यही वो मकाम है जहां फे से फजीहत जन्म लेती है, क्योंकि जो चीज छुपने नहीं वाली थी वो जाहिर हो जाती है। फिर कहर से तहर आता है, मगर यह कहर अक्सर जाहिरी मुसीबत की सूरत में नहीं आता, बल्कि दिल की तारीकी की शक्ल में आता है। दिल सख्त हो जाता है, जिक्र बेजायका लगने लगता है, और खामोशी खौफ पैदा करने लगती है। ये सब इस बात की अलामतें हैं कि इंसान ने फक्र को थामने के बजाय उस पर कब्जा करने की कोशिश की है।
और आखिर में र से रद आता है, यानी वो दरवाजा जो कभी खुला महसूस होता था अब बंद सा लगने लगता है। दुआ जबान पर होती है मगर दिल में नहीं उतरती, आंख देखती है मगर पहचान नहीं पाती, और सुनने वाला कान भी हकीकत को नहीं पकड़ पाता। ये रद सजा नहीं बल्कि फितरी अंजाम होता है, क्योंकि फक्र किसी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रखता। इसके बरअक्स जो शख्स फक्र में साबित कदम रहता है उसकी हालत बतदरीज बदलती है मगर उसे खुद खबर नहीं होती। वो दिन बदन हल्का होता जाता है, बोझ उतरते जाते हैं, और एक वक्त आता है कि वो अपने गम को भी गम नहीं समझता। उसके लिए राहत और तकलीफ दोनों एक ही रंग इख्तियार कर लेती है, क्योंकि उसका दिल अब नतीजों से आजाद हो चुका होता है। यही वो कैफियत है जिसमें दुनियावी खजाने उसकी नजर में बेहद हकीर हो जाते हैं, मगर इसलिए नहीं कि वो इनसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि वो जान चुका होता है कि असल दौलत कहाँ है। वो जान लेता है कि जो चीज छिन सकती है वो दौलत नहीं, और जो चीज छिन न सके वही गना है। यही गना फकीर के बातिन को भर देती है, चाहे जाहिर में उसके पास कुछ ना हो। यहाँ एक अहम बात और भी है कि फकीर का जाहिरी सवाल भी लोगों को उलझा देता है। लोग कहते हैं कि जो शख्स गनी हो वो क्यों मांगे, मगर वो ये नहीं समझते कि फकीर मांगता नहीं, वो हुक्म पर होता है। उसका मांगना भी उसकी मर्जी नहीं होती बल्कि उसके हाल का तकाजा होता है। वो मांग कर भी आजाद रहता है और ना मांग कर भी। इसी मकाम पर फक्र और रिया के दरमियान फर्क पूरी तरह वाजे होता है। रिया में इंसान दूसरों की नजर का मोहताज होता है, फक्र में इंसान अपनी ही नजर से भी आजाद हो जाता है। रिया में आदमी चाहता है कि लोग उसे कुछ समझे, फक्र में आदमी चाहता है कि कोई उसे ना समझे। यही चाहना ना चाहना असल फर्क है। फकीर की जिंदगी में आजमाइशें खत्म नहीं होती बल्कि उनकी नौइयत बदल जाती है। शुरू में आजमाइश फक्र की होती है, बाद में आजमाइश फक्र को संभालने की होती है। जो इस दूसरी आजमाइश में कामयाब हो जाए उसके लिए फक्र नेमत बन जाता है, और जो नाकाम हो जाए इसके लिए यही फिक्र वबाल बन जाता है। ये भी एक हकीकत है कि फकीर को अक्सर बदनामी का सामना करना पड़ता है। लोग इस पर इल्जाम लगाते हैं, इसके एमाल को गलत रंग देते हैं, इसकी नीयत पर शक करते हैं, मगर फकीर इन सब बातों से अपना रास्ता नहीं बदलता, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसने लोगों को राजी करना शुरू कर दिया तो वो हक से दूर हो जाएगा। यही वजह है कि फकीर का रास्ता तन्हा होता है, और यही तन्हाई इसकी हिफाजत भी करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से में भी यही नुक्ता है कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश रहते तो हकीकत खुलती, मगर सवाल ने पर्दा उठाने में जल्दी कर दी। इसी तरह फकीर का हाल भी इस वक्त तक सलामत रहता है जब तक वो बेनाम रहता है। जैसे ही नाम आता है फितना शुरू हो जाता है। इसीलिए अहले फक्र हमेशा दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें पहचान से बचा, शोहरत से बचा, और हमें अपने हाल में गुम रख, क्योंकि फक्र का सबसे बड़ा दुश्मन पहचान है। जो पहचाना गया वो आजमाइश में पड़ गया, और जो छुपा रहा वो महफूज रहा। सब्र का, मगर ये सब्र आम सब्र नहीं, ये वो सब्र है जो शिकायत से पाक होता है। फकीर दुख सहता है मगर शिकवा नहीं करता, वो महरूमी देखता है मगर हसरत नहीं पालता, वो जुल्म सहता है मगर इंतकाम नहीं चाहता। यही सब्र उसे रहमत के दरवाजे के करीब ले जाता है। अब ये सफर इस मकाम पर आ रहा है जहां फक्र, सब्र और रहमत एक दूसरे में घुलने लगते हैं, और जहां ये बात खुलेगी कि फकीर का रहम क्यों बाज औकात सख्ती में भी छुपा होता है, और उसकी खामोशी क्यों कभी कभी तलवार से ज्यादा काटदार होती है। फक्र के इस मकाम पर आकर रहम और सख्ती एक दूसरे के मुखालिफ नहीं रहते, बल्कि एक ही हकीकत के दो रुख बन जाते हैं। यहां आकर फकीर का दिल इतना वसी हो जाता है कि वो नरमी को भी हक के ताबे रखता है और सख्ती को भी। यही वो नुक्ता है जहां आम अक्ल धोखा खा जाती है, क्योंकि वो रहम को हमेशा नरमी के साथ और सख्ती को हमेशा कहर के साथ जोड़ देती है। हालांकि फक्र में दोनों का सरचश्मा एक ही होता है। फकीर जब खामोश रहता है तो वो भी रहम होता है, और जब किसी मकाम पर कड़वा सच बोल देता है तो वो भी रहम ही होता है, मगर इस रहम में
खुशामद नहीं होती। यही वो कैफियत है जहां फकीर की खामोशी बाज औकात तलवार से ज्यादा काटदार महसूस होती है। वो जवाब नहीं देता, मगर उसका ना देना सामने वाले को उसके अपने हाल से रूबरू कर देता है। ये वो मकाम है जहां फक्र वाज नहीं करता बल्कि आईना बन जाता है, और आईना किसी को कुछ कहता नहीं, बस दिखा देता है। इसी दिखाने से बाज लोग बिखर जाते हैं और बाज संभल जाते हैं। यहां आकर ये बात पूरी तरह वाजे हो जाती है कि फक्र किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को बदलने की मुसलसल कैफियत का नाम है। फकीर का काम दुनिया को दुरुस्त करना नहीं, बल्कि अपने अंदर के झूठ को तोड़ना है। जो शख्स दूसरों की इस्लाह में लग जाए और अपनी इस्लाह से गाफिल हो जाए, वो फक्र के रास्ते में कहीं पीछे रह जाता है। यही वजह है कि फकीर की तवज्जो हमेशा अपने हाल पर होती है, न कि दूसरों के अमाल पर। इसी मकाम पर यह फर्क भी खुलता है कि नसीहत और हुक्म में क्या फर्क है। फकीर हुक्म नहीं देता, वो नसीहत भी कम ही करता है। उसकी जिंदगी खुद एक नसीहत बन जाती है। जो देखने वाला हो वो देख लेता है, और जो अंधा हो उसके लिए 1000 लफ्ज भी काफी नहीं होते। यही वजह है कि फकीर का दायरा महदूद होता है, मगर असर गहरा होता है। यहाँ एक और बारीक हकीकत सामने आती है कि फकीर का ताल्लुक वक्त से बदल जाता है। वो माजी की नदामत में नहीं जीता और ना मुस्तकबिल की फिक्र में घुलता है। वो हाल में रहता है, और यही हाल उसके लिए इबादत बन जाता है। उसका हर लम्हा एक अमानत होता है जिसे वो जाया नहीं करता। यही हाल उसे इद्तराब से बचाता है, क्योंकि इद्तराब या तो माजी से जन्म लेता है या मुस्तकबिल से। इसी हाल में रहने की वजह से फकीर का दिल शुक्र से भरा रहता है, मगर ये शुक्र लफ्जों का मोहताज नहीं होता। वो खाना मिलने पर भी शुक्र में होता है और ना मिलने पर भी। वो इज्जत मिलने पर भी शुक्र में होता है और जिल्लत के वक्त भी, क्योंकि इसके नजदीक असल चीज वाकया नहीं बल्कि निस्बत होती है। जो कुछ भी आता है वो उसी निस्बत से आता है, उसी लिए वो कबूलियत में रहता है। यह कबूलियत ही फक्र का सबसे बड़ा सरमाया है। कबूलियत का मतलब यह नहीं कि जुल्म को जुल्म ना कहा जाए, बल्कि यह है कि जो पेश आ रहा है उसमें अपनी अना को आड़े ना आने दिया जाए। फकीर जुल्म को जुल्म कह भी दे तो उसके दिल में नफरत नहीं होती, और अगर खामोश रहे तो बुजदिली नहीं होती। उसकी हर कैफियत हक के सामने सरे तस्लीम खम करने की सूरत होती है। यही वजह है कि फकीर के दिल में खौफ भी बदल जाता है। मखलूक से डरता है और ना अंजाम से। उसका खौफ सिर्फ एक होता है, और वो है रजत का खौफ। उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं वो अपने हाल से गिर ना जाए, कहीं वो दोबारा नफ्स के जाल में ना फंस जाए। यही खौफ उसे जिंदा रखता है, यही खौफ उसे झुकाए रखता है। यहां एक और नुक्ता समझना जरूरी है कि फकीर का झुकना कमजोरी नहीं होता। वो झुकता है मगर टूटता नहीं। वो नर्म होता है मगर बकता नहीं। इसकी नरमी में असूल होते हैं और इसकी सख्ती में दर्द। यही इम्तिजाज फकर को मुतवाजिन रखता है। इसी मकाम पर फतर का ताल्लुक दुआ से भी बदल जाता है। फकीर दुआ कम मांगता है, मगर जो मांगता है वो अपने लिए नहीं बल्कि हाल के लिए मांगता है। वो कहता है कि या अल्लाह, हमें समझ अता फरमा, हमें देखने की आंख दे, हमें साबित कदम रख। वो नेमतों की फहरिस्त नहीं बनाता, क्योंकि वो जानता है कि जो जरूरी है वो पहले ही दिया जा चुका है। ये दुआ दरअसल वही दुआ है जो दिल की गहराई से निकलती है कि अल्लाह पाक हमें सोचने और समझने की तौफीक दे। यही दुआ फकर का खुलासा भी है और इसकी इब्तदा भी, क्योंकि जो सोचने लग गया वो जाग गया, और जो जाग गया वो फकर के रास्ते में दाखिल हो गया। यहां फकर एक और मरहले में दाखिल होता है, जहां यह सवाल उठता है कि क्या फकर सबके लिए है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर है तो फिर इतने कम लोग इस पर क्यों कायम रह पाते हैं। यही वो सवाल है जो अगले मरहले का दरवाजा खोलेगा, जहां फकर की चुनाव, इसकी कीमत और इसकी तन्हाई पर बात खुलेगी। फक्र सब के लिए है या नहीं, यह सवाल दरअसल इस गलतफहमी से पैदा होता है कि फक्र कोई मनसब है जिसके लिए दरखास्त दी जा सकती है, या कोई मकाम है जिसे मेहनत से हासिल किया जा सकता है। फक्र ना तो किसी का हक है और ना किसी की मीरास।
ये एक अमानत है जो उसी को दी जाती है जो उसका बोझ उठा सके। हर इंसान में फक्र की इस्तेदाद मौजूद होती है, मगर हर इंसान उसकी कीमत अदा करने पर आमादा नहीं होता। यही वजह है कि फक्र आम नहीं, हालांकि उसका दरवाजा बंद भी नहीं। फक्र की कीमत सबसे पहले अपनी राय से दस्तबरदारी है। इंसान सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, मगर अपनी राय छोड़ने पर आमादा नहीं होता। वो कहता है कि मेरा तजुर्बा, मेरी समझ, मेरा इल्म दुरुस्त है। फक्र यहां आकर कहता है कि जब तक तू अपनी समझ को हरफे आखिर मानता रहेगा, उस वक्त तक तुझे वो समझ नहीं मिलेगी जो अता होती है। यही पहली कीमत है और यही सबसे मुश्किल भी है। दूसरी कीमत अपनी इज्जत से दस्तबरदारी है। इंसान बज़ाहिर कहता है कि उसे इज्जत की परवाह नहीं, मगर जरा सी बेतौकीरी उसके अंदर तूफान बर्पा कर देती है। फक्र यहां आकर इंसान को ऐसे मकामात पर ले जाता है जहां उसकी इज्जत खाक में मिलती है, उसका नाम मजाक बनता है, उसका हाल मशकूक समझा जाता है। जो उस मरहले पर टूट जाए वो पीछे रह जाता है, और जो ठहर जाए उसके लिए ये बेइज्जती एक नया लिबास बन जाती है। तीसरी कीमत ताल्लुकात की कुर्बानी है। फक्र में इंसान बहुत से रिश्ते नहीं तोड़ता, मगर बहुत से रिश्ते खुद ब खुद छूट जाते हैं। कुछ लोग उसकी खामोशी को गुरूर समझ लेते हैं, कुछ उसकी आजादी को बगावत और कुछ उसकी बेनियाजी को नाशुक्री। फकीर किसी को मनाने नहीं जाता, इसलिए वो तन्हा होता जाता है, मगर यही तन्हाई उसकी हिफाजत भी करती है। यही वो मकाम है जहां फतर की तन्हाई का असल मफहूम खुलता है। ये तन्हाई लोगों से दूरी नहीं, बल्कि गैर जरूरी आवाजों से निजात है। फकीर तन्हाई में घबराता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि असल हुजूम उसके अंदर था जो अब छुट चुका है। जब अंदर सुकूत आ जाए तो बाहर की खामोशी खौफ नहीं देती। यहां आकर फकीर का ताल्लुक इल्म से भी बदल जाता है। वो इल्म का इनकार नहीं करता, मगर इल्म पर तकिया भी नहीं करता। वो जानता है कि इल्म अगर हाल में ना ढले तो बोझ बन जाता है, इसीलिए वो कम जानने को तरजीह देता है, मगर जो जानता है उसे जीता है। यही वजह है कि फकीर की बात में किताबों की खुशबू नहीं होती, बल्कि जिंदगी की आँच होती है। इसी मुकाम पर यह हकीकत भी सामने आती है कि फक्र में तकलीद की गुंजाइश कम होती जाती है। इब्तिदा में इंसान किसी की पैरवी करता है, किसी के नक्शे कदम पर चलता है, मगर एक मुकाम आकर उसे खुद अपने कदमों पर खड़ा होना पड़ता है। यहाँ रहनुमा भी खामोश हो जाता है, और ये खामोशी दरअसल एतमाद की अलामत होती है। जो उस खामोशी को बर्दाश्त ना कर सके वो दोबारा किसी शोर की तरफ लौट जाता है। यही वो मरहला है जहां बहुत से लोग फक्र से रुज्जत इख्तियार करते हैं, क्योंकि उन्हें हिदायत चाहिए होती है, आजादी नहीं। फक्र आजादी देता है, मगर ये आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता। जो कुछ है वो खुद इंसान के सामने होता है, और यही सामना सबसे कठिन होता है। यहाँ फक्र का ताल्लुक खौफ और उम्मीद से भी बदल जाता है। फकीर ना जन्नत की लालच में जीता है और ना दोज़ख के खौफ में। वो उन दोनों का इनकार नहीं करता, मगर उसकी इबादत उन पर मबनी नहीं होती। उसका मरकज सिर्फ रजामंदी होती है। वो चाहता है कि जो भी हो इसमें रजा शामिल हो। यही रजा उसे इज़्तिराब से बचाती है। इसी रजा के साथ फकीर का ताल्लुक क़ज़ा व क़दर से जुड़ता है। वो सवाल कम करता है कि ये क्यों हुआ, बल्कि ये देखता है कि अब इसमें मुझे क्या बनना है। वो हालात को अपने खिलाफ नहीं समझता, बल्कि उन्हें अपनी तरबियत का हिस्सा समझता है। यही नजर उसे शिकस्त से बचाती है, क्योंकि जो हर वाक़े को सीखने की जगह बना ले वो हारा नहीं करता। यहाँ एक और नुक्ता खुलता है कि फक्र में इंसान दूसरों के लिए बोझ नहीं बनता। वो अपने दुख को दूसरों पर नहीं डालता, अपनी शिकायत को मजलिसों की जीनत नहीं बनाता। वो जानता है कि हर शख्स अपनी जंग लड़ रहा है। यही शऊर उसके रहम को वसी करता है और उसकी जबान को हल्का रखता है। यही वजह है कि फकीर की मजलिस में शोर नहीं होता। वहाँ कहकाहे कम और खामोशी ज्यादा होती है। वहाँ लोग बदलने नहीं, ठहरने आते हैं। वहाँ कोई किसी को कायल नहीं करता, मगर बहुत से लोग कायल होकर उठते हैं। ये कायल होना दलील से नहीं, हाल से होता है। फकीर और मुद्दई का फर्क दरअसल अल्फाज और एमाल के फर्क से नहीं, बल्कि अंदरूनी कैफियत से जाहिर होता है। मुद्दई वो होता है
जो कुछ बनने की कोशिश कर रहा होता है, और फकीर वो होता है जो कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ चुका होता है। मुद्दई को पहचान की तलब होती है, फकीर को गुम हो जाने की ख्वाहिश। मुद्दई चाहता है कि लोग उसके बारे में राय कायम करें, फकीर चाहता है कि लोग उससे बेनियाज रहें। यही बुनियादी फर्क है जो बाकी सब फर्कों को जन्म देता है। मुद्दई की गुफ्तगू में एक नरमी दिखाई देती है, मगर उसके पीछे तलब छुपी होती है। वो अल्फाज को इस तरह चुनता है कि सुनने वाला मुतासिर हो, कायल हो, झुक जाए। फकीर की बात में तरतीब कम होती है, मगर वजन ज्यादा। वो मुतासिर करने के लिए नहीं बोलता, बल्कि अगर बोले तो इसलिए कि बोलना नागुजीर हो जाए। यही वजह है कि फकीर की खामोशी अक्सर उसकी गुफ्तगू से ज्यादा बली होती है। मुद्दई अपने अमाल को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें खूबसूरत बनाकर पेश करता है। वो चाहता है कि उसकी इबादत, उसका जुहद, उसकी कुर्बानी देखी जाए। फकीर अगर कोई अमल करता भी है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि जाहिर होना खतरनाक है। जाहिर होना फितना लाता है, और फिक्र फितना से बचने का नाम है। यही वो मकाम है जहां सुल्तान बाहू का वो कौल पूरी तरह समझ में आता है कि फकीर को एक नजर में पहचाना जा सकता है। ये नजर आंख की नहीं, हाल की होती है। ये वो नजर है जो अल्फाज के पीछे की खामोशी को देख लेती है, जो दावे के पीछे की नीयत को पहचान लेती है। जैसे सुनार सोने को आवाज, रंग और वजन से परख लेता है, वैसे ही अहले नजर फकीर को इसके हाल से पहचान लेते हैं। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि हर खामोश शख्स फकीर नहीं होता, और हर बोलने वाला मुद्दाई नहीं होता। मसला बोलने या ना बोलने का नहीं, मसला उस मरकज का है जहां से बोलना या खामोश होना जन्म लेता है। अगर मरकज नफ्स हो तो खामोशी भी रिया बन जाती है, और अगर मरकज हक हो तो गुफ्तगू भी इबादत बन जाती है। फकीर और मुद्दई के फर्क को समझने के लिए एक और पैमाना यह है कि मुसीबत में दोनों का रवैया कैसा होता है। मुद्दई मुसीबत में बेचैन हो जाता है, शिकवा करने लगता है, और लोगों से इंसाफ की तवक्को बांध लेता है। फकीर मुसीबत में भी संभला रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये भी एक अमानत है। वो जुल्म को जुल्म कह सकता है, मगर दिल में कड़वाहट नहीं पालता। यही फर्क उसके बातिन को महफूज रखता है। इसी तरह इज्जत के वक्त दोनों का फर्क और ज्यादा वाज़े हो जाता है। मुद्दई इज्जत पाकर फैल जाता है, इसके अंदर का नफ्स गजा पा लेता है। फकीर इज्जत पाकर और ज्यादा सिमट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इज्जत आजमाइश है। वो डरता है कि कहीं ये इज्जत उसे अपने हाल से गाफिल न कर दे। यही खौफ उसे झुकाए रखता है। यहाँ एक और बारीक नुक्ता सामने आता है कि फकीर की नजर हमेशा अंजाम पर होती है, इब्तिदा पर नहीं। वो किसी के शुरू को देखकर फैसला नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि असल इम्तिहान आखिर में होता है। मुद्दई इब्तिदा को सजाता है, फकीर अंजाम को सुनावारता है। यही वजह है कि फकीर जल्द सामने नहीं आता, मगर देर तक कायम रहता है। इसीलिए बहुत से लोग इब्तिदा में फक्र की तरफ आते हैं, मगर अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। रास्ता तवील नहीं, मगर गहरा है। यहाँ रफ्तार नहीं, इस्तकामत चाहिए। जो शख्स जल्दी में हो वो फक्र के लिए मौजू नहीं। फक्र ठहराव मांगता है, और ठहराव नफ्स को नागवार होता है। फर्क भी खुलता है। सियासत मजहब में मकबूलियत मकसद होती है, फक्र में मकबूलियत सबसे बड़ा खतरा होती है। फकीर मकबूल हो जाए तो वो खुद को खतरे में समझता है, क्योंकि भेड़ सच को नहीं पहचानती, वो सिर्फ चमक देखती है। यहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की एक और झलक सामने आती है कि उनका रास्ता तन्हा था, उनका इल्म मखसूस था, और उनका अमल आम फहम से बाहर था। इसीलिए वो अवामी नहीं थे, और यही उनकी हिफाजत थी। फकीर भी अवामी होने से बचता है, क्योंकि अवामी होना जिम्मेदारी नहीं बल्कि फितना बन जाता है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि फकीर का ताल्लुक मुरीद बनाने या पैरोकार जमा करने से नहीं होता। अगर लोग उसके पास आ भी जाएं तो वो उन्हें अपने साथ बांधने के बजाय आजाद छोड़ देता है। वो चाहता है कि हर शख्स खुद अपने हाल तक पहुंचे, इसके साये में ना जिए। यही आजादी असल तरबियत है। अब यह सफर उस मकाम पर आ रहा है जहां फक्र और विलायत के ताल्लुक पर बात खुलने वाली है, जहां यह समझ में आएगा कि हर फकीर वली नहीं, और हर वली फकीर क्यों होता है, और क्यों बाज औलिया
ज़ाहिर में आम और बातिन में गैर मामूली होते हैं। फक्र और वलायत का ताल्लुक समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विलायत कोई लक़ब नहीं, कोई सनद नहीं और ना ही कोई ज़ाहिरी इम्तियाज है। विलायत दरअसल कुर्ब की वो कैफियत है जो बंदे को उसकी अपनी जात से भी ओझल कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वली फकीर होता है मगर हर फकीर वली नहीं। फक्र रास्ता है, विलायत अंजाम है, और अंजाम का इल्म सिर्फ अंजाम पर पहुंचकर होता है, इससे पहले नहीं। वली वो नहीं जो लोगों में मशहूर हो, जिसके गिर्द मजमा हो या जिसकी बात को हुज्जत माना जाए। वली वो है जो खुद अपनी निगाह में कुछ ना हो मगर हक की निगाह में मकबूल हो। यही वो मकाम है जहां फक्र अपनी इंतहा को पहुंचता है, क्योंकि यहाँ बंदे की अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत, हत्ता के अपनी निजात की फिक्र भी पस मंजर में चली जाती है। वो बस इस हाल में रहता है जो उस पर वारिद है। यही वजह है कि औलिया अक्सर लोगों की निगाह में आम होते हैं। वो बाजार में चलते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, कोई खास इम्तियाज इख्तियार नहीं करते। उनकी गैर मामूलियत उनके बातिन में होती है, उनके हाल में होती है, ना कि उनके जाहिर में। यही वजह है कि बहुत से औलिया अपने जमाने में पहचाने नहीं गए और बाद में उनकी हकीकत खुली। यहाँ फक्र का एक और नुक्ता खुलता है कि फकीर अपने हाल को भी अपना नहीं समझता। अगर उस पर कोई कैफियत वारिद हो, कोई लज्जत मिले, कोई कुर्ब महसूस हो, तो वो उसे भी अमानत समझता है। वो उसमें रुकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि रुक जाना ज़वाल की इब्तिदा है। यही वजह है कि फकीर की जिंदगी में कैफियतें बदलती रहती है मगर उसका रुख नहीं बदलता। यही वो मकाम है जहां बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। वो किसी कैफियत को पाकर समझ लेते हैं कि यही मंजिल है, हालांकि वो महज एक दरवाजा होता है। फक्र कैफियत का नाम नहीं, फक्र कैफियत से आजाद रहने का नाम है। जो कैफियत का असीर हो जाए वो फक्र से बाहर हो जाता है, चाहे उसके तजर्बात कितने ही बुलंद क्यों ना हो। यहाँ विलायत और करामत का फर्क भी समझना जरूरी है। करामत कोई मेयार नहीं बल्कि बाज़ औक़ात आजमाइश होती है। अगर किसी को करामत मिल जाए और वो उस पर ठहर जाए तो वो अपने हाल से गिर सकता है। वली करामत को अपनी पहचान नहीं बनाता बल्कि उसे छुपाने की कोशिश करता है। उसके नजदीक असल करामत इस्तिकामत होती है, यानी हक और साबित कदम रहना। यही वजह है कि फकीर की जिंदगी में सबसे बड़ी करामत उसका मामूल होता है। वो रोजमर्रा के काम इसी नियत, इसी हुजूर और इसी अदब के साथ करता है। उसका उठना बैठना, बोलना खामोश होना सब एक ही रंग में ढले होते हैं। यही यकसानियत उसकी पहचान होती है, क्योंकि नफ्स को ड्रामा पसंद है और फक्र सादगी। यहाँ फक्र और इबादत का ताल्लुक भी बदल जाता है। फकीर इबादत इसलिए नहीं करता कि सवाब मिले, बल्कि इसलिए करता है कि इबादत उसका हाल बन चुकी होती है। वो नमाज को बोझ नहीं समझता, वो जिक्र को फर्ज नहीं समझता, बल्कि ये सब उसके वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि उसकी इबादत में दिखावा नहीं होता, क्योंकि वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होती। उसी मकाम पर फकीर का ताल्लुक मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नए रंग में जाहिर होता है। यहाँ हुजूरी किसी खास लम्हे की कैफियत नहीं बल्कि एक मुस्तकिल निस्बत बन जाती है। फकीर का दिल अदब में डूबा रहता है, उसकी नीयत में एहतियात होती है और उसके अमल में तवाजुन। वो किसी बात में हद से नहीं बढ़ता, क्योंकि वो जानता है कि हद से बढ़ना नफ्स की अलामत है। यही अदब फकीर को बदगमानी से बचाता है। वो लोगों के बारे में जल्द फैसला नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हर शख्स किसी ना किसी मरहले पर है। वो किसी को रद्द करने में जल्दी नहीं करता और ना ही किसी को बिला शर्त कबूल करता है। यही एतदाल उसकी बसीरत को महफूज रखता है। यहाँ एक और अहम नुक्ता सामने आता है कि फकीर का ताल्लुक दीन के जाहिर से कभी नहीं टूटता। वो शरीयत से बाहर नहीं जाता, बल्कि शरीयत के अंदर रहकर बातिन की वसात पाता है। जो शख्स शरीयत को छोड़कर विलायत का दावा करे, वो खुद को धोखा दे रहा होता है। फक्र शरीयत के बगैर अंधा है और शरीयत फक्र के बगैर खुश्क। यही तवाजुन फकीर को महफूज रखता है। वो ना सिर्फ बातिन में डूबा रहता है और ना सिर्फ जाहिर में उलझा रहता है, वो दोनों को एक ही सांस में जीता है। यही जीना फक्र की असल हकीकत है।
अब ये सफर अपने आखिरी दायरे की तरफ बढ़ रहा है, जहां फक्र का खुलासा, उसकी रूह और उसकी दुआ एक दूसरे में मदगम हो जाएंगे, और जहां ये बात पूरी तरह वाज़े हो जाएगी कि फक्र आखिर इंसान से चाहता क्या है और इंसान को कहां ले जाकर छोड़ता है। फक्र जब अपने आखिरी दायरे में दाखिल होता है तो वहां कोई नई बात नहीं मिलती, बल्कि वही बात बिल्कुल सादा होकर सामने आ जाती है जिससे इंसान इब्तिदा में गुजरा था। फर्क सिर्फ ये होता है कि इब्तिदा में वो बात सुनी गई थी और इंतहा में वही बात बन चुकी होती है। यहां फकीर को ये इदराक हासिल होता है कि वो जिस कुर्ब की तलाश में था वो कुर्ब कहीं बाहर नहीं था, बल्कि इसी सुपुर्दगी में पोशीदा था जिसे वो मामूली समझकर नजरअंदाज करता रहा। यही वो मकाम है जहां सवालात खत्म हो जाते हैं। फकीर के दिल में अब ये जुस्तजू नहीं रहती कि उसे क्या मिला या उसे क्या मिलेगा। इसका सुकून उस बात में होता है कि जो भी है वो हक की तरफ से है और जो नहीं है वो भी उसी की हिकमत है। यहां शिकवा खत्म हो जाता है, क्योंकि शिकवा हमेशा खुदी के बाकी रहने की अलामत होता है और यहां खुदी तहलील हो चुकी होती है। इस मरहले पर फकीर की दुआ भी बदल जाती है। वो अब किसी खास चीज की दुआ नहीं करता, बल्कि वो खुद दुआ बन जाता है। इसकी सांसों में तलब नहीं, रजा होती है। वो मांगता नहीं बल्कि कबूल करता है। यही कबूलियत उसे इस मकाम पर ले आती है जहां हर हाल इबादत बन जाता है और हर सांस जिक्र। यहां फक्र की सबसे बड़ी पहचान खामोशी है। बाहर वो बोलता भी है, मुस्कुराता भी है, लोगों से बात भी करता है, मगर अंदर कोई शोर नहीं होता, ना ख्वाहिश का, ना खौफ का, ना नफा का। यही अंदर की खामोशी उसे दुनिया के हुजूम में भी तन्हा नहीं होने देती, क्योंकि उसका दिल किसी और के साथ आबाद होता है। यहां फक्र की सबसे बड़ी पहचान खामोशी है। वो खामोशी जबान की नहीं होती, बल्कि अंदर की ना होती। वो जानता है कि वो महज एक वसीला है और वसीला कभी मकसद नहीं बनता। उसीलिए फक्र की जिंदगी में शुक्र और सब्र अलग अलग चीजें नहीं रहती। जो मिलता है वो भी शुक्र है और जो छिन जाता है वो भी शुक्र। जो ठहरता है वो भी शुक्र और जो चला जाता है वो भी शुक्र, क्योंकि अब मायार बदल चुका होता है। अब मायार ये नहीं कि क्या मिला, बल्कि ये होता है कि उसमें हक की रजा कहां है। यहां फक्र की आखिरी पहचान सामने आती है और वो है जिम्मेदारी। फकीर बेनियाज नहीं हो जाता है, बल्कि ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। वो दर्द को महसूस करता है, मगर उससे टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि टूटना मदद नहीं और मजबूत रहना ही असल खिदमत है। यही वो जगह है जहां फक्र वलायत में ढल जाता है, बगैर ऐलान के, बगैर दावे के, बगैर पहचान के। यहां कोई कहता नहीं कि मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि पहुंचने वाला कभी कहता नहीं। वो बस उसी हाल में जीता है जिसमें हक ने उसे रखा होता रहे। और यहां आकर ये बात पूरी तरह वाज़े हो जाती है कि फक्र इंसान को कहां ले जाकर छोड़ता है। फक्र इंसान को किसी बुलंद मकाम पर नहीं बिठाता, बल्कि उसे अपनी असल पर वापस ले आता है। एक ऐसे बंदे की सूरत में जो ना खुद को बड़ा समझता है, ना किसी को छोटा, ना अपने अमल पर फख्र करता है, ना किसी के जवाल पर खुश होता है। यही फक्र की तकमील है। ना शोर, ना ऐलान, ना निशान, बस एक सीधा सा ताल्लुक, एक मुसलसल सपुर्दगी और एक ऐसी जिंदगी जो बज़ाहिर आम होती है मगर बातिन में गैर मामूली। यहां ये गुफ्तगू अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचती, बल्कि खामोशी में मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि फक्र की असल बातें अल्फाज में मुकम्मल नहीं होती, वो सिर्फ जीती जाती है।